Les sujets pronoms. Les sujets pronoms, these are the subject like I, he, she, you, we, il, elle, nous, vous. So je is the first person singular. I. Repeat with me. I. Je. You. This means I. It's the first person singular. Tu. You. This means you. Second person singular and informal. Singular, you know the singular. Informal, for example, like uh, you would be using this with a person whom you are free. For example, Next time, younger next. than. So God, next I want to do it myself. If you allow, I Sorry, I should read. didn't get you. Next मैं पढ़ूँ sir खुद ही. Sure, please go ahead. Next one is ill. Hmm. It's he or she. Yeah, For ill. The first one is ill, and the yes, second one is L. L. Yes, L. Okay. Ill is for You, he and L is for she. well done. Third person And then singular. next one is nose. Nu, nu. 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 Yeah, Yes, do nu. not Nu is pronounce for we. S. Yeah, Nu. exactly. See, And the next one is woo. yes, who, do not pronounce S. Yes, woo. And, Acha, and then next let we me go for let me give you the explanation about this woo. This woo also means you, but it is this can be used for singular and with a group of person. For example, if I am in a class, so I can say vous êtes, you are a student, vous êtes étudiant. So हम इसको सिंगल भी इस्तेमाल करेंगे ग्रुप के साथ भी, बट दिस इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे. ओके, लाइक फॉर्मल वे. जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि vous êtes monsieur blanc, are you Mr. Blanc, XYZ. Yes, go ahead for the next one. and the next one is ills. Acha, for this time, for the being time, we do not pronounce like S. So although they will be pronouncing in further whenever they comes with articles or no, or like with vowels, but अभी pronounce नहीं होगा. तो आपने वैसे ही पढ़ना है जैसे Ill. ऊपर वाले पढ़े थे. Ill or ills. Well done, very nice. Any question about this? Aucune question? कोई question है इसके अंदर? No, so, these are clear, very much clear. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद अब मैं दोबारा से ये वाला बता रहा हूँ. इल्ज़ाम लो शोकोला. So this is a sentence actually how we form the sentence in French. They like chocolate. Il aime, he likes. अब हम पढ़ने जा रहे हैं les salutations, the greetings. So would you mind to read greetings as well? Whenever I see you make you need to correct in the pronunciation, I will. Okay. Mm, First one is bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Yeah, Bon, it's a combined word. Bon stand for good, and jour stand for day. Okay, it has three meaning like good morning, good day, and hello. So whenever you need you meet any Frenchman in the morning, so you can say bonjour monsieur, good day. Okay, और अगर दोपहर में कर रहे हैं तो भी इसका मतलब वो good day ही हो जाएगा फिर automatically. Do you understand? sir. Sir. Next one. Second one is bonsoir. Well done. Soir, थोड़ा सा प्रोनाउंस बेहतर करें. Soir, bonsoir. Bonsoir. Good evening. Good evening. Good evening. When when we have to do this. Third one is bon midi. Yeah. Bon après-midi, it's good afternoon. Bon après-midi. यहाँ पर Uh, दोबारा से देखें ए आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने इस एन को इससे अटैच करना है. Bon après-midi, good afternoon. Bon après-midi. Yes. And this one. Bonne nuit. Bonne nuit, well done. Good night. This Bonne one. nuit. Bonne nuit. Uh, this one is uh, 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 I can't remember. Please tell me. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Yeah, revoir. this means any see you again or bye, Au goodbye. revoir. Yes. Next one is a bientôt. A bientôt, see you soon. Well Okay. done. आगे Next चलिए. one is salut. 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 Hello. Hi. Salut. Hi. Then next one is enchanté. Enchanté. D'accord. Si tu Enchanté. as enchanté, si tu as vraiment besoin de demander next one, so it's prochain. In French, next one est prochain. So try to use this word prochain.
next. और अगर फीमेल के लिए होगा so you add e at the end, then this will become Hoshan. Would you be able to see the chat? Yes, it just pop up and goes away. हाँ, Hoshan नज़र आ रहा है आपको? एक दफा आया था लेकिन वो नीचे गायब हो गया, चैट आई थी एक दफा. मैं दोबारा से करता हूँ, नो प्रॉब्लम. Hoshan. कॉल मैसेज आप जो now it's looking, now it's visible. चैट इन कॉल्स मैसेजेस में भेज रहा हूँ मैं. जी सर. अच्छा अच्छा. Let's everyone send the messages. Okay, no problem. I can write over there on the board. So word file के ऊपर मैं लिख रहा हूँ. This word actually I was giving you. Prochan, Prochan. So now it's visible. Yes, now it's visible. This means next. Yeah, well done. Next. But if you write with e, it will become next for feminine only. So ये मैंने यहाँ लिख दिया. So अब आपने next के लिए ये बोलना है. Prochan, next. Question. Sir, can you please pronounce for male and female again? Prochan, Prochan. Prochan Poshan. is the C. Yeah. Female Poshan. Prochan, Prochan. Poshan is for female. Yes. Poshan. ई Okay. का मतलब क्या होता है फ्रेंच में? ई का मतलब होता है कि उससे पहले जो लेटर आ रहा है कॉन्सोनेंट, उस लेटर को हमने प्रोनाउंस करना है. ठीक है ना? तो इस वजह से अगर फीमेल के लिए हम ई लगाएंगे तो फिर हम इसको फोशन बोलेंगे. फोशन सुमेन. फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते मैं लाहौर जा रहा हूँ. जवेज लाहौर ला सुमेन फोशन. I'm going to Lahore next week. Question. So I added this e because Suman is feminine. Female name. Week जो है ये feminine है French में. ठीक है? और आ के ऊपर I have to give that sign. You will recall that sign which was accent grave accent. Je vais à Lahore la semaine prochaine. Next week I am going to Lahore. Yes. Got it. Enchanté. Whenever you meet with someone, with French people, you say enchanté, madame. मिलके खुशी हुई आपसे. Enchanté, Mushtaba. I'm happy to see you. Okay, so we say like this. And merci is thank you. Merci, thank you. Yes. Rest of the thing you can read yourself. You can ask me. C का मतलब क्या है? जो आपको नहीं पता, feel free to ask me. सर बट मैडम का समझ, मैडम की आगे इसके नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मैडम से पहले ये अशांते, ये हाँ ये वही वर्ड है enchanté. दो दफा लिखा. अशांते मैडम नीचे वाला सर. Enchanté, monsieur. Yeah, monsieur. This one? This is used for Yeah, this one is monsieur, Mister. Mr. Yeah. I'm going to put headphone on. Maybe I think you can't listen properly. आप मुझे अब आवाज़ आपको मतलब आ रही है मेरी क्लियर? देखिए आवाज क्लियर आ रही है, नो इश्यूज. हेडफोन रिकॉर्डिंग है सर. चलें सही, ठीक है. यार बड़ा हेडिक होता है ये हेडफोन भी जो है ना. एक आध घंटा तो आदमी लगा लेता है, उसके बाद फिर ही बवाल बन जाता है. ऐसे कान में दर्द करने लगते हैं. अच्छा, तो अभी जो है क्वेश्चन पे अब आप जा रहे हैं जी जुवेज लाहौर. मुझे बताएं aucune question ici. You have any question? Aucune question. None. Okay, d'accord. So I'm going to correct this. Why it's not giving me correct? AU होना चाहिए था ना. AU it's already. Okay, let me fix the language. Maybe language is out. Yes. ये प्रॉब्लम ये कि ऑटोमेटिकली ये जब इंग्लिश वर्ड के ऊपर हम आते हैं ना तो ये इंग्लिश ले लेता है उठा के. ऑटो इंग्लिश उठा लेते हैं. Aucune question means any question. Any question. ठीक है जी. And so you note it down. I will be giving you this file, no problem. अच्छा, अब आप आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस के ऊपर. तो मैं इसको ज़रा प्रॉपरली विजिबल करता हूँ यहाँ पर. अब मुझे बताएं ये did we do this before earlier or not? प्लीज कम इन, समझ नहीं क्या बोले. I mean हमने ये किया है इससे पहले? नहीं सर, नहीं. Okay, so you going to learn tense présent. Présent means present tense, okay, in French. And I want to give you some explanation about the verbs in French language. So basically in French
we have lots of verb in each and every language, like in English, in Urdu, Arabic. So we have lots of verb. So do you have any idea what are the verbs? Yes, sir. Better bit idea for English and Urdu, but not for French. No problem. Share the explanation of a verb. सर वर्ब किसी भी काम करने को Exactly. करना, कोई भी काम करना. तो काम करना. फ्रेंच में I got it. I got your point. So first, French grammarian has kept all these verbs in three different columns or in three different boxes in order to make them easy to be used in the sentences by the non-native people. Do you understand? जी सर, गेटिंग इट. ओके, ठीक है. यानी इनको इन्होंने तीन खानों में रखा हुआ है ताकि ये इजी हो जुमलों में इस्तेमाल होने के लिए. सो पहला वर्ब जो है, लाइक दोज एंड ऑन ई आर, दे कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप ऑफ द वर्ब. सो 90% ऑफ द होल फ्रेंच वर्ब्स आर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, दिस वर्ब्स. आई रिपीट, वी हैव 90% ऑफ द फ्रेंच वर्ब दोज एंड ऑन ई आर. ठीक है, ई आर पे एंड हो रहा है, ई आर पे एंड हो रहा है. यू सी, सबके आखिर में ई आर आ रहा है, तो हम इसको एक कैटेगरी में रख लेते हैं. डज इट मेक सेंस टू यू? इज इट क्लियर? इट्स क्लियर. ठीक है जी. बाकी सेकंड ग्रुप जो है, ये आर ई वाले वर्ब्स के ऊपर होता है एंड. ठीक है, देखें सबके आखिर में आर ई आ रहा है, आर ई आर ई आर ई. यू डोंट नो द मीनिंग, नो प्रॉब्लम, बट आपको आर ई एटलीस्ट नज़र आ रहा होगा सबके आखिर. जी सर. तो ये दीज आर वेरी फ्यू इन नंबर्स एंड more few the third group, those end on IR. That's all. तो ये अब आप समझ गए कि we have three kinds of verb in French language. ठीक है, तीन किस्म के verbs हैं हमारे पास. उनको हमने, फर्स्ट वाला जो ER पे एंड होता है, इट्स रेगुलर verb. Why it's regular? Because it has ER at the end and they are easy to use in the sentences. Second one can be regular or irregular. It's a mixed plate. ठीक है, थोड़ा सा टफ है कॉन्जुगेशन में, बाज़ दफ़ा डी गायब हो जाता है और बाज़ दफ़ा डी नहीं गायब होता. थर्ड में जो है, वी हैव आई आर एट द एंड. ठीक है, दे ऑल्सो समटाइम रेगुलर और समटाइम इरेगुलर. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसको सब. पहले आप वर्ब को पढ़िए. आई वॉन्ट यू टू रीड ऑल द वर्ब्स. पाल, पागले. पागले. ठीक है, इसी सब के आखिर में ए की आवाज़ आएगी. आप इसको एज इट इज़ पढ़ते रहें. पागले. वेल डन. एनकाउंट्रे. écoutez, écoutez. Yeah, it's Écoutez. écoutez. Yeah. Écoutez. Yes. Écoutez. मखरे. मार्शे, खे. आर जो है खे पढ़ा था हमने, ये मार्शे हो गया. मार्शे. मक्शे. सेरे. सेरे, सेरे. 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 To shake. Yes. एतुदंत. Étudier, étudier. एतुदिए. I'm having class. Just go away. एतुदिए. Étudier. And habiter habiter. is to live. Regarder. 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 Is to watch. I repeat all the verb again. Parler, to speak. Écouter, to listen. Marcher, to walk. Serrer, to shake. Étudier, to study. Habiter, to live. Regarder is to watch. Do you understand the meaning? Got it, sir. D'accord, très bien. Numéro 2. Le colonne numéro 2, the column number 2. Read with me. Répondre. Répondre. Comprendre. Comprendre. Attendre. Attendre. Entendre. Entendre. Apprendre. Apprendre. Yeah, these are the second category, second group of the verb. All the time ends on re, re, xyz. और meaning क्या है? Répondre means to reply. Comprendre means to comprehend, to understand. Attendre means to wait. और entendre means to hear. और hear जो होता है ना, सुनना. उसके बाद comprendre, to learn, सीखना. नंबर थर्ड ग्रुप पे आप पढ़िए प्लीज. Partir. Partir, well done. Partir. Sortir. ठीक है.
फिनीर, फिनीर, ठीक है, री का साउंड आएगा आखिर में, वेल डन। फिनीर और खोनीर, कुगीर, कुही, या इट्स आई, COURIR, कुगीर, सी, कुहीर. या COURIR, कुगीर. So this one nicely done. अब आपको समझ आ गया. I'm going to ask you few questions. How many kinds of verb in French language? 3. How can we recognize the first group of the verb? The first one will end on ER. Well done. Second The group, second group ends on RE. and what about the third one? And third one is on IR. इट विल एंड ऑन आई, वेल डन. सो अब ये तो समझ आ गया जी हमें कि ये सारे वर्ब हैं. अच्छी तरह हमने समझ लिया इस किस्म के वर्ब होते हैं. यू नो द मीनिंग और यू डोंट नो द मीनिंग, बट यू विल रिकग्नाइज एज सुन एज यू सी दिस वर्ब कि ये जो है दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है. सो होगा क्या, ये आपको आसानी करेगा उसको एडिट करने के लिए, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए. सो दिस मॉडिफिकेशन कॉल्ड कॉन्जुगेशन. तो अब आपको ये कॉन्जुगेशन सीख रहे हैं अभी यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पर कोई सवाल है इधर पे? None. ठीक है जी, ओके, वेल डन. अच्छा, अब देखें होता क्या है. जब हम इंग्लिश में कहते हैं आई स्पीक फ्रेंच, ठीक है, दिस मीन आई स्पीक, बट हम ये कहते हैं ही स्पीक्स, एस का एडिशन करते हैं ना इंग्लिश में. Yes, sir. ठीक है, ऐसे आई है. तो फ्रेंच में समझ लें कि दिस हैपन्स 5 और 6 टाइम प्लस. ठीक है जी, यानी वर्ब मॉडिफाई होता है. तो अब इंग्लिश में तो आसान है, सिर्फ एस या एस का एडिशन का आपने कर दिया. फ्रेंच में वो चेंजिंग मुश्किल है, इसलिए उन्होंने ये पूरा एक ग्रुप में आपको पूरा एक ग्रीड समझाऊंगा. ठीक है, तो फ्रेंच में थोड़ा सा वो टफ है. बेसिकली दिस प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन. उर्दू में इसको गिरदान बोलते हैं. एंड दैट्स वाई फ्रेंच लैंग्वेज इट्स वेरी सिमिलर टू द पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज एज वेल, एंड उर्दू इवन, बिकॉज उर्दू इज़ ऑल्सो जेंडर लैंग्वेज. जैसे हम कहते हैं मेरी यू नो फीमेल के साथ ये मेरी गाड़ी है, तो हम फीमेल जेंडर लैंग्वेज. इसी तरह फ्रेंच Yes, में, sir. ठीक है जी. तो ये मतलब ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में देखनी पड़ेंगी. अब हम सीखते हैं कि कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन इज़ द प्रोसेस इन विच यू लर्न हाउ टू मॉडिफाई द वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. आई मीन यू, त्यू, ईल, एल, नू, वू. So this you going to learn how. So as soon as you want to conjugate a verb, you want to conjugate any verb. For example, I just want to conjugate this one verb, पागले. पागले का मतलब है to speak, Speak. and on the for the being time, it's an infinitive verb. What is an infinitive verb? A verb which is not used yet in the sentences, like raw verb, mother verb. ऐसा वर्ब जो अभी अपने जुमले में इस्तेमाल नहीं हुआ, अभी हमने उसको जुमले में इस्तेमाल नहीं किया. ठीक है, जैसे उर्दू में होता है करना, मगर अब इस करना एक वर्ब हो गया, मगर हम इसको सारे सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं. हम बोलते हैं वो करती है, ये करता है. अब देखें कर वैसे ही ता ती ते में चेंज हो रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Getting. मेन वर्ब क्या है, करना. तो इस पागले का जो है वो इंग्लिश में जो है वो टू स्पीक है. टू स्पीक इट्स इन्फिनेटिव, और फ्रेंच में ये जो है पागले और वो इन्फिनेटिव वर्ब, द रॉ वर्ब. अब हमें इसको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, जो इसको अपने जहन में दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं. ठीक है, वी नीड टू डिवाइड दिस वर्ब इन आवर माइंड इन 2 सेक्शन. So remove the last 2 letter. For example, I remove this last 2 letter, ठीक है, took away from this. The rest of the part called stem. So it's written here, stem. Rest of the letters of a verb called stem or radical, except ending er, e.g. in first group in the present. This er called ending. Okay. Basically, as soon as you want to conjugate a verb for using in the sentences, you just divide this verb in 2 sections. The last 2 letters would be endings, and the rest of the consonant will be called stem or Stem. radical. ये Stem. इसलिए होता है, इसलिए कि you have different ending. अब हम क्या करते हैं, we write radical with all the subject, like you see, you notice I wrote everything, all the radical in black. Do you understand? Yes, sir. Getting it. अच्छा, कैन यू रीड दिस रेडिकल ओनली, यानी Uh, स्टेम पढ़ें खाली, पाल पाल हर जगह यही नज़र आ रहा है ना. पाल गया है. अब क्या करते हैं, ये एंडिंग्स हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में यू सी दैट वी आर इन प्रेजेंट टेंस, तो यू कैन फाइंड दैट फ्रेंच ग्रामरियर kept this ending to make the conjugation easily. So whenever we write radical of a verb, we add this e. ठीक है, we have to learn this by heart. Okay, we have to add e with the first person.
We have to add es with the second person, we have to add e with the third person, like vice versa, ठीक है, with the for others. We have to add ons with nu. तो ऑटोमेटिकली ये वर्ब आपने कॉन्जुगेट कर दिया. अब आप क्या बोलते हैं, आई स्पीक फ्रेंच, तो यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, जो पाल फ्रांसे, यू सी ई इज हियर, जो ये पाल कॉल कौन फ्रांसे, से आई स्पीक फ्रेंच. इफ यू नीड टू से यू स्पीक फ्रेंच, देन यू सी आई रोट एस हियर. This ad would not be pronounced now, but we do write this ad. Tu parles français. कॉल कौन से Itika parle très bien français. Itika speaks lots of French, good French, ठीक है. तो अब देखें मैंने उसके लिए ई रखा. Nous parlons français avec Alina. We speak. अब यहाँ पर ONS रख दिया मैंने इसलिए कि सब्जेक्ट नू था, ये वाला नू, ठीक है. सो हमने nous parlons français avec Alina. We speak French with Alina. वो पागले, अब वो सब्जेक्ट लिहाजा ई जेड आखिर में आ रहा था, तो मैंने इसको नहीं. इस तरह हम ये करते हैं पूरी कॉन्जुगेशन. स्टार्टिंग में शायद आपको टफ लगे, मगर मुझे बताएं कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं. ये सर समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा ठीक है, अच्छा आ रहा है, चलो. अच्छा, अब आप इसी में से देखें कैसे बोलेंगे कि दे स्पीक फ्रेंच. है. वो ये वाला से VOUS वो ये दे दे इल पार्ले यस, वेल कौन डन. से कौन से. अब देखें प्रोनाउंसिएशन टून देखें, सीखें आप इसकी. ये अच्छा, मुझे ज़रा चार्जर अटैच कर देते हैं इसमें ना, जी सर. ना हो जाए. या अल्लाह. हाँ जी, आर यू विद मी जी नाउ? सर. यस सर. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. अच्छा जी, अब वी वर हियर. हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द फोनेटिक्स हियर. सो सर ऑल दैट स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन नजर नहीं आ रही. स्क्रीन, ओह माय गॉड. हाँ, असल में नेट बंद हो गया. अच्छा जी, अब यहाँ पर हाँ, आर यू एबल टू सी स्क्रीन नाउ? यस सर. Okay, so we were talking about the phonetics on the conjugated word. अच्छा, first let me clear, let me make you understand the second group. ठीक है, second group में what is happening here, फिर हम phonetics पे बिल्कुल आखिर में बात करेंगे. This is the set. So all the time we do the same story for this verb also. That's why I just divided already. Respond का ER आपने जहन में अलग किया. उसके बाद you have to add these endings S, ONS, EZ, ENT, and there is nothing for the third person singular. Do you understand like this? गेटिंग. है ना. For example, je réponds मतलब I reply. I know कि infinitive verbs répondre है, but using in the phrases I would be making certain changes. Je réponds, I am replying.
ठीक है। उसके बाद आई आर वाले वर्ब में भी हम ऐसे ही करते हैं, एंडिंग्स को ड्रॉप कर दिया और फा लिखा, फिन इज अ स्टेम, तो ये हर किसी के साथ लिखा, और एंडिंग्स मैंने थोड़ा अलग कर दिया, आई एस आई टी, ठीक है। दिस शुड बी इन ब्लैक बेसिकली, आई टी देखें, आई टी एड हुआ है तो मैं इसको ब्लैक कर दूँ, ये। अब देखें, आई एस इसकी एंडिंग है, उसके बाद आई दोबारा आई एस है ट्यू के साथ, उसके बाद आई टी है। आप ज़रा पढ़िए प्लीज़, एंडिंग पढ़िए। ISITOONS। ये अब देखिए, मैंने कहा था इरेगुलर है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है वो सिर्फ हमें सीखने से आती हैं, डबल एस का एडिशन हमने कर दिया है यहाँ पर। तो ये मतलब कॉन्जुगेटेड वर्ड में हमें याद करने पड़ती हैं, मगर एंडिंग फिर भी इसकी एक जैसी है, ठीक है जी। The EZ and ENT. तो सारे वर्ब जो भी फ्रेंच में हम इसी तरह कॉन्जुगेट, अब आपको ये पता लग गया है कि देर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब इन फ्रेंच लैंग्वेज एंड यू नो हाउ टू कॉन्जुगेट देम। इवन यू डोंट नो द मीनिंग, बट आपको पता लग जाएगा, अगर फार्मूला आपने अच्छी तरह सीख लिया तो आप उसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। इज इट ओके? Sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब देखें हम क्या करते हैं, इस वर्ब को मैं बता क्या रहा था, हाँ फोनेटिक्स बता रहा था, किस तरह जो है ये हम फ्रेंच को वर्ब्स को इसको पढ़ेंगे। तो हमेशा क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन ये रहा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, दे गिव्स ऑलमोस्ट द सेम साउंड, खड़ा साउंड होगा इसका। फॉर एग्जांपल जो पाल, तू पाल, इल पाल, नो चेंजिंग। इसी तरह जो रेपों, tu réponds, il répond। यहाँ पर थोड़ा सा ई का हमें प्रोनाउंस करना है, डी को, बिकॉज ई आ रहा है, वो विल रेपोंड। इसमें देखें, जो फिनी, ट्यू फिनी, इल फिनी, तीनों एक जैसे, और फिनी विनी लिखा, मैंने दूसरा वर्ड डाल दिया, बट वो फिनिश होता अगर होता तो, ठीक है, मैंने वर्ड दूसरा डाल दिया इसके अंदर। तो इस तरह यानी प्रोनाउंसिएशन की जो टून है, चाहे किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी ऑलमोस्ट सेम होती है। यू इल की एक जैसी होगी, थर्ड पर्सन प्लूरल की। जो चेंज आता है वो होता है नू और वू में। तो नू में जब कभी भी आप पढ़ेंगे नू को, तो हमेशा नून उन्ने आखिर में आएगा। अब देखें, नोटिस करें, ठीक है, SR में। ओ एन एस आ रहा है, तो इसका प्रोनाउंस होगा नू पार्लों, नू रेपोंडों, नू फिनिसों, हमेशा ओ की आवाज़ आएगी आखिर में, ठीक है। और यहाँ पर जो है पूरा ए की आवाज़ आएगी, कैसे, vous parlez, vous répondez, vous partez। तो हमेशा ये प्रोनाउंसिएशन टून है आपकी, इस तरह आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये हो गया। अब यहाँ कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि ये काफ़ी ड्राई है ये लेसन। It's fine, sir. आप अभी तक ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ आपको बुक के ऊपर लेके जाना है, ठीक है जी। सो